you're watching Hindustan Times, and I'm Aditi Prasad. Russia's invasion of Ukraine has sent shockwaves across the world. Now, even as the world is, of course, scrambling at this time to punish Russia, impose tough sanctions for waging war on Ukraine, the humanitarian damage itself is of this, especially on the ground of this war, is really going to be absolutely unprecedented. On the show today, we are joined by Suraj Kumar and Pavan, two students who are presently in the war-ravaged country of Ukraine, and we're going to speak to them about the situation there. And how they are sort of planning to come back, whether the MEA has been in touch with them. Also joining us is Nandan Unikrishnan, a distinguished fellow at ORF and an expert on the Soviet Union, from what I've been told. Indians, of course, have been caught in the crossfire there in Ukraine amid the spiraling Russia-Ukraine conflict. Nearly 16,000 Indians, I'm given to understand, are students specifically, are stranded in the war-ravaged country. Let me just first come to you, Suraj. Where exactly are you? You are in Ukraine right now, but how far away are you from the capital? हेलो नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं उजग्रोद नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, जो कि कीव से लगभग 1000 या 900 किलोमीटर दूर है। वेस्ट साइड में पड़ता है। जो सिचुएशन, जो पैनिक, जो इन्वेजन हुआ है, वो ज़्यादातर ईस्ट साइड में हुआ, कुछ पार्ट ऑफ वेस्ट साइड में भी हुआ है, जैसा हमें पता चला है। और हम यहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और लास्ट ईयर में हैं। और यहाँ जहाँ पे हम हैं, यहाँ से ही यूक्रेन का हंगरी और स्लोवाकिया का बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन। Hungary और Slovakia are two nations जिनको बोला है MEA ने that you can approach, the students there can approach those borders, land route से evacuation करने की कोशिश हो रही है. Are you trying to get in touch with them? Are you trying to get out of the country right now? Yeah, sure. When we are getting the information from the embassy, we are always checking in internet, and we got the information, and we talk with them, and they are saying, yeah, you will be the first, because the university which is situated in near to the Hungary border, so we will be the first. We will be evacuating from the But ये बताओ पवन, आपको जो ये हमारे यहाँ में बहुत सारे व्यूज से शेयर कर रहे हैं, तो दो छुपे हुए थे और आसपास के इलाकों में वहां पे बॉम्बिंग वगैरह हुई है। और जो दूसरा एरिया जो ओडेसा है, ओडेसा पोर्ट काफी हद तक वहां पे अटैक हो चुका है। वहां पे प्लेन्स वगैरह ने काफी बॉम्बिंग वगैरह की हैं। और जो हमारे वहाँ के जो फ्रेंड्स हैं, मेनली उनको इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि रोमानिया उनके लिए ओपन हो गया है, तो वो लोग वहाँ सबसे पहले इवैक्यूएट होके जाएंगे। और जहाँ तक जो स्टूडेंट्स हैं, मेनली जो उश्गरोद के अंदर हैं, वो लोगों हमें कहा गया कि आप हंगरी जो बॉर्डर है, आप उसे क्रॉस करके फिर आप बुडापेस्ट से आप वापस इंडिया जा सकते हैं। All right, just since we're talking about the students, let me bring them in, and then I want to sort of tell us, Suraj, what is the situation out there? You've spoken about initially what the situation is out there, but when we were speaking on the phone, आप बता रहे थे you are studying medicine there. मेडिसिन आप वहां पे पढ़ रहे हैं, वहां पे आपके एरिया में जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अभी 200 किलोमीटर दूर हो केव से, जहां बमबारी हो रही है, यू फील रिलेटिवली सेफ, बट स्टिल यू आर लुकिंग एट इवैक्यूएशन प्लान्स. हैज द MEA बीन इन टच विद यू, बिकॉज़ वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजंस? हाँ, हम लोग जब एम्बेसी का जो भी नंबर आया, हम उस पर कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोग इवैक्यूएशन की प्लानिंग बना रहे हैं। और बाकी जब ये हमला हुआ, यहाँ पे यूक्रेन में इन्वेजन हुआ, तो जब हम बाहर गए, ATM में बहुत ज़्यादा लाइनें लगी हुई थी, और जो सुपरमार्केट एकदम मतलब भरे हुए थे। तो हमने पैसा भी निकालने की कोशिश किया, लेकिन पैसा निकला नहीं। काफ़ी दूर तक भटके, उसके बाद हम वापस आ गए। लेकिन जब हम देखेंगे माहौल, जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि जब वो बात करते हैं अपने फ्रेंड से, खार्किव है जो कीव में और जगह पे है, वो बंकर्स में रह रहे हैं, -1 डिग्री सेल्सियस में वो पूरी रात गुजारे हैं। तो उन लोगों के लिए भयावह स्थिति है। हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ तक अगर कुछ ना हो, तो उसके पहले ही हम यहाँ से निकल जाएँ। राइट, आपने बताया कि आपके कुछ दोस्त हैं वहां पे, वो लोग अभी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, दे हैव बीन इन टच विद MEA. वहां पे क्या माहौल है उन स्टूडेंट्स का जो कि इस एक्चुअली वॉर टॉर्न एरिया में हैं अभी इस वक्त मौजूद?
वो बता रहे थे कि जैसे कि वो उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि इवैक्यूएशन हो रहा, तो वो बाहर गए पैसा निकालने के लिए, सेम टाइम पे कोई ब्लास्ट हुआ और वो बहुत डर गए। वो किसी तरीके से सोच रहे हैं कि यहाँ से यहाँ से हमें हमें निकाला जाए, और वो लोग भटक रहे थे। उन्होंने कोई बस शायद उन्हें मिल गया है और वो रोमानिया बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि रोमानिया में उन्होंने किसी संपर्क किया है। वो बता रहे हैं कि वहीं से उनको वहां से रिसीव किया जाएगा, उनको एंट्री मिल जाएगी रोमानिया में। इंडियन वहीं से एम्बेसी ने एडवाइजरी भी निकाली है कि गाड़ी के आगे इंडियन फ्लैग निकाल कर चिपका लो। वो सब आई एम होपिंग दैट आप लोग वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं जब आप बाहर जा रहे हैं तो। जी बिल्कुल। और हमें बताया गया है कि जैसे कि जब हमें वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप लोगों को यहाँ बॉर्डर पे आना है, तो हमें अपने साथ पासपोर्ट और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट होनी चाहिए, और हमारे गाड़ी के सामने हमारे पास भी इंडियन फ्लैग होना चाहिए वहां पे एंट्री ओके, देने के लिए। वैक्सीनेशन स्टेटस का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे? नहीं, वैक्सीनेशन का लिए भी इंस्ट्रक्शन आया है कि आपको दोनों वैक्सीनेशन होना चाहिए, और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और इंडियन फ्लैग होना चाहिए। आपके आपके जेब में भी कुछ अमाउंट खर्च के लिए होना चाहिए, पर्सनल खर्चा। जब 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 अटैक हुआ आप लोगों को लग रहा था कि इन्वेजन होगा? इतनी दिनों से अ, बातें चल रही थी। चल रही थी हमें पूरा, क्योंकि हम जब टीचर से यहाँ लोकल बात कर रहे थे, तो वो लोग कह रहे थे आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, दे आर मीन्स वेरी नॉर्मल। तो हम लोग इतना डर नहीं रहते, लेकिन जब हुआ तब ये पता, मतलब तब तब डर लगने लगा। मेनली जो यूक्रेनियंस यहाँ के सिटीजन हैं उन्होंने कहा है कि हम तो 2014 से ही एज इन अ स्टेट ऑफ वॉर हैं, हम लोग हमेशा से ही। हमने अपने 14,000 ऑलरेडी सिविलियंस खो दिए हैं, तो हमारे लिए कोई वॉर नई बात नहीं है। तो इस वजह से वो लोग इस सिचुएशन को देख के काफी नॉर्मल है। लेकिन जो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए ये चीज नहीं है, हमने कभी लाइफ में वॉर तो देखी नहीं थी। तो जब हमने एकदम से ये चीजें देखी, हमारे फ्रेंड्स ने देखी, तो एकदम से चीजें बदल गई हमारे लिए। पवन, आपके आपके भी दोस्त हैं उस तरफ जहाँ पे एक्चुअली बमबारी हो रही है वहां? जी उन जी लोगों जी, से जब आपने फोन पे बात करी, वगैरह आर दे मूविंग टुवर्ड्स सेफ्टी? अब सिचुएशन नॉर्मल है या अभी भी अफरा तफरी है? हाँ जी, हमारे फ्रेंड्स जैसे कुछ ओडेसा वगैरह के अंदर हैं, उनसे कल रात को बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि इंडियन एम्बेसी जो है उनके टच में आई थी, और अब वो लोग धीरे धीरे शायद अपनी पैकिंग वगैरह कर चुके हैं, और हो सकता है शायद निकल भी गए हों वो लोग रोमेनियन बॉर्डर के लिए। Okay, all right. So as right, and from a world which is already just now on the brunt of an economic crisis due to COVID, due to कोविड। Omicron, the new variant, this really, because prices are going to go up. Come a war situation in any corner of this global village, many Indians feel, अरे वहाँ हो रहा है पर यहाँ क्या effect पड़ेगा? यहाँ पे already effect आने लगा है. Oil prices are skyrocketing. The budgetary balance has gone for a toss. Whatever Nirmala Sitharaman laid out a few weeks ago. And I'd love to talk to you more about a lot of other things, sir. But I know that you have to go for another thing. But I hope we can get you back again, because this China angle is very, very important. Because the big question is, will Putin's move embolden China, the expansionist China, or expansionist mentality of Xi Jinping? Because this move, now, if he says, okay, acha, usne kar diya, to main bhi kar sakta hu, and that is a bigger danger as far as India is concerned. And I hope you'd agree with me But there. that's another discussion. All the That's best. another All the best, Suraj. Thank you so much Do for well. joining this broadcast, viewers. Thank you, sir, for joining us. Thank you, Pavan. Thank you, Suraj. Thank you Hope very you go much. back, come back to us safe and sound. And of course, you have my numbers. Please do reach out in case you run into any problems. We try to help as much as possible. Thank you so much for watching this broadcast, viewers. I know we hope we've been able to bring some sort of perspective about the evolving situation in Russia, in Ukraine, and the impact on India. Thank you so much. Thank you very much.